Hello and good afternoon, everyone. This is Avishek Tiwari here, and I'm going to I'm going to give you the summary and explanation of the fourth lesson of snapshots, named Albert Einstein at School, which is written by Patrick Pringle. Okay, स्टूडेंट्स मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो चैप्टर एक लेसन जो है लेके आया हूं, जहां पे बहुत कुछ मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेसन्स दैट हैज़ बीन टॉट. दिस स्टोरी इज़ अबाउट द यंग आइंस्टीन, how he faced difficulties while getting his elementary education in his childhood. Okay, so this is regarded as a very important lesson. Okay, this is an extract of the young Einstein. It was a well known biography of Patrick Pringle about Albert Einstein. He described the circumstances which led to Einstein's expulsion from the German school. Okay, how he expelled from the German school. It has been described here in this story. The teacher is early in his classes. Einstein get stuck in the conflict with his social teacher, with his history teacher, and then after on some issues they had a sure experience with both. एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस बहुत कड़वे हो जाते हैं, और जहाँ टीचर जोर दे रहा होता है कि लर्न करने के ऊपर फोकस कर रहा होता है, वहीं पे जो आइंस्टीन होता है, यंग आइंस्टीन जो है वो टीचर को समझा रहा होता है कि उसे लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, सो ही डज़ नॉट लर्न एनीथिंग एंड डज़ नॉट मेक फोकस ऑन लर्निंग rottenly facts. Okay, or simply we could say that he was repulsive of the factual studies. Okay, he told that he believed in analytical studies, not in factual studies. So the teacher felt insult when young Einstein told her about this way of studying. So therefore the teacher he excluded him from the school. He he make an expulsion from the German school. After that school he went to a very as his parents were not so rich, so he lived with his parents, with his father alone in a very rough circumstances, in a rented room, actually not a house, where the landlady and landlord, they both quarrelsome with each other, and the environment was also not quite well. So after all these finally after so many days, his friends, his cousins, they all tried to know what exactly his interest was. And finally after that he said that he wanted to get admission in somewhere in Milan and some big places. Okay, so his friend helped him. He suggested he had asked his friends help, and said that to search a doctor, a medical practitioner who could give him a certificate, okay, a medical certificate of his will. Okay, and then after his friend arranged a medical practitioner, amateur medical practitioner. He went with him to that doctor, and doctor he discussed with the doctor made the certificate, but this was not actually worth about. So finally क्या होता है कि फिर वो अपने स्कूल जाता है. उस स्कूल में जा कर के उसे फाइनली वहाँ से लीव मिल जाती है, और वो उसी के बेसिस पे वो जर्मन स्कूल में चला जाता है. अपने एडमिशन जर्मन स्कूल से निकल कर के वो अपने
उस फ्रेंच स्कूल में चला जाता है जहाँ एक्चुअली वो पढ़ना चाहता था, जो इस इन्वायरमेंट से दूर था। फिर वो वहाँ पे फाइनली जो है चला जाता है। तो ये एक शॉर्ट समरी है इस लेसन की। स्टूडेंट्स आइए और अब स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह की है। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा ध्यान फोकस करते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं ओके कि बेसिकली इसमें क्या मेंशन है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर। हिस्ट्री टीचर ने पूछा आइंस्टीन इन व्हाट ईयर, कि किस वर्ष में, ओके, डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। टीचर ने पूछा कि वाटरलू के वॉर में, जो वाटरलू का 1815 में वॉर हुआ था, ठीक है, आपने हिस्ट्री 10th में पढ़ा होगा। तो उस वाटरलू के वॉर में ना फाइनली टीचर पूछती है कि किस ईयर में जो है ये वॉर हुआ था। डिड द प्रूशियन डिफीटेड, मतलब प्रूशियन ने या फ्रेंच को डिफीट किया था, हराया था। ओके, आई डोंट नो सर, द आइंस्टीन आंसर्ड दैट ही डजंट नो, कि वह नहीं जानता। वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें ये तो कई बार बताया गया है, तुम क्यों नहीं जानते। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, उसने कहा, आइंस्टीन ने, शायद मैं भूल गया हूँ। ओके, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। ओके, मिस्टर ब्राउन ने पूछा कि क्या तुमने कभी लर्न करने का प्रयास किया। नो सर, उसका रिप्लाई आया स्ट्रेटली, नो सर। ओके, विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, अपनी न सोचने वाली ईमानदारी से, सामान्य ईमानदारी से उसने उत्तर दिया कि नहीं सर। वाई नॉट, क्यों नहीं याद किए। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, उसने कहा मुझे ये डेट्स लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता है। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक ना, इसके लिए किसी ने हमेशा बुक में देखते रहना पड़ता है और वो मेरे बस का नहीं है, मैं उसको नहीं कर सकता। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पा करके मिस्टर ब्राउन कुछ समय के लिए तो स्पीचलेस हो गए, मतलब उनकी तो आवाज़ ही नहीं निकली कि वो क्या बोले। ओके, यू अमेज मी, ओके, आइंस्टीन सेड, ही सेड एट लास्ट, और लास्ट में वो बोले मिस्टर ब्राउन कि तुमने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया आइंस्टीन। डोंट यू रियलाइज़ दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक्स। डोंट यू रियलाइज़, क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता, दैट वन कैन ऑलवेज लुक, कि कोई अगर स्टूडेंट है तो उसे हमेशा बुक में ही देखना होता है कुछ भी तलाशने के लिए। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, तो जो भी फैक्ट्स तुम लर्न करते हो स्कूल में, वो सभी फैक्ट्स अप्लाई होते हैं कहाँ पे, वो बुक्स में ही अप्लाई होते हैं। ओके, तो वो टीचर ने ऐसे आंसर दिया, ओके, टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न, जो तुम सीखते हो वो बुक्स में ही होते हैं। ओके, फाइनली यस सर, उसने आंसर दिया यस सर। देन आई सपोज़ यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो टीचर ने कहा इसका मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें फैक्ट्स को लर्न करने में कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब तुम फैक्ट्स लर्न करना नहीं चाहते हो, ठीक है, या फैक्ट्स लर्न करना तुम्हें अच्छा लगता नहीं है। फ्रैंकली, ओके सर, आई डोंट। ओके, अल्बर्ट ने कहा कि फ्रैंकली कहूँ तो सर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फैक्ट्स लर्न करना। ओके, देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो तुम फिर इस तरह के एजुकेशन में बिलीव नहीं करते होगे ना, नहीं करते फिर। ये क्वेश्चन उसकी टीचर की ओर से फिर दोबारा आया। ओ यस सर आई डू, उसने कहा हाँ सर बिल्कुल, मैं नहीं पसंद करता इस तरह की एजुकेशन को। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी बन चुका है स्टूडेंट्स। ओके, इसको जस्टिफाई करने को क्वेश्चन आ चुका है। सो आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन, कहता है मैं नहीं समझता कि फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन है किसी भी तरह का ना, कोई चीज़ को रटना जो है वो एजुकेशन है, मैं इस चीज़ को नहीं समझता। ये कहा किसने, ये आइंस्टीन ने कहा। ऑलराइट, ओके, देन इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सार्काज्म, हिस्ट्री टीचर ने बहुत सार्काज्म मतलब उसके मुंह छिड़ाते हुए, आलोचना करते हुए फिर टीचर ने बहुत हैवी हार्ट से कहा, परहैप्स यू विल बी सो काइंड ना, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थियोरी ऑफ एजुकेशन। तो टीचर ने 3 इडियट की तरह फिर बोला, तो फिर आप ही बता दीजिए कि आपकी आइंस्टीन की थियोरी ऑफ एजुकेशन क्या है।
आइंस्टीन जो है उनकी थियोरी ऑफ एजुकेशन क्या है ना, किस तरह से आप चाहते हैं पढ़ाना। अल्बर्ट फ्लस्ट, अल्बर्ट जो है उसमें थोड़ा सा जो है मुंह दबा के हंसने लगा। ओके, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर्स। ओके, उसने कहा कि मुझे लगता है कि फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, बट आइडियाज़, फैक्ट के जगह पे आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, आइंस्टीन ने कहा। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। उसने कहा आई डोंट थिंक, ओके, आई डोंट थिंक दैट आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल। ठीक है, उसने कहा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि बैटल्स की डेट लर्न करने में क्या पॉइंट है, क्या इसमें इंपॉर्टेंस है। और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, किस आर्मी ने कितने ज़्यादा लोगों को मारा, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा यह जानने में या सीखने में कि उन सोल्जर्स ने आपस में एक दूसरे को मारा क्यों, न कि किसने कितना ज़्यादा मारा। ये फैक्ट्स मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस है। और वो रियल एजुकेशन की रियल पिक्चर खींच रहा था यंग आइंस्टीन। ओके, होप आप ये समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है। आज की एजुकेशन भी ऐसी है, हम फैक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, बट एक्चुअली हमें एनालिटिकल पढ़ना होता है, एनालिटिक होना पड़ता है। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूएल। मिस्टर ब्राउन की आइज़ कोल्ड एंड क्रूएल मतलब गुस्से से पागल हो गए वो, ठीक है, और दया मतलब एकदम से क्रूरता से, और बोले बस बहुत हो गया। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। हम तुम्हारी ओर से कोई लेक्चर नहीं चाहते आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। आज तुम एक और पीरियड के लिए यहाँ पे रुकना, ठीक है, तुम यहाँ एक और पीरियड के लिए रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड ना, हालांकि मुझे नहीं लगता है, मेरी कल्पना से ये बाहर है कि ये तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन तुमको आज एक पीरियड और रुकना होगा। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड। ये स्कूल के लिए भी कुछ अच्छा नहीं होगा इधर, हालांकि टीचर ने कहा। यू आर ए डिस्ग्रेस, तुम एक अपमान हो यहाँ के लिए। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू स्कूल कम। मैं नहीं जानता कि तुम क्यों इस स्कूल में आते हो, तुम लगातार क्यों स्कूल आते हो, मैं ये नहीं जानता। ओके, टीचर ने इस तरह से उसने उसकी इंसल्ट करते हुए ऐसे कहा। ऑलराइट, सो इस तरह से इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट ने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि सर ये मेरी विश नहीं है, मतलब मैं अपने मन से स्कूल नहीं आता हूँ। अल्बर्ट ने आंसर दे दिया। ओके, देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। इसका मतलब तुम एक अनग्रेटफुल मतलब एहसान नहीं मानने वाले बच्चे भी हो तुम ना। एंड ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें तो अपने ऊपर सर माननी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे ना, मैं सजेस्ट करती हूँ तुमको, तुम अपने पिता से कह के तुम्हें इस स्कूल से ले जाएं, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, बस आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे स्टडी करेंगे। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एंड इसके साथ साथ अगर आपको आप पहले विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।